Hi students, good morning. And now let us continue with the topic of vectors which we did start yesterday. So now what are we going to do today? First of all, the remaining theory part जो कल अपना बचा हुआ था आज हम उसे खत्म करेंगे. And then we are going to start with the part of exercise number 5.1. Though I have written random around 3 or 4 questions over here on the board, and then I'll tell you all about the questions and how you can solve them. Now, starting with theorem number 1, first of all. Theorem number 1 simply says that if, let us say, suppose there are two vectors A and B, and if those vectors are collinear to each other. Collinear का मतलब मैंने कल आपको बताया था, यदि एक वेक्टर ऐसे में जा रहा है और दूसरा वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, so technically they are known as collinear vectors. Means they are lying in the same line. Okay. So if the vectors are collinear, and if the vectors are represented as A and B, A vector and B vector, then the necessary condition should be m times of A plus n times of B should be equals to 0. अब आप बोलोगे ये कैसे आया? Guys, that's a very simple proof. Though I am not doing the proofs of the theorem right now, but just imagine A vector should be equals to n B vector. कल याद करो, यदि A vector और B vector यदि parallel हुआ या यदि collinear हुआ तो that means A vector should be equals to n times of B vector. So that means that I have brought this particular part over here. A minus n B vector should be equals to 0. Now you can apply any of the number. आप A के जगह पर आप m ले लो, n ले लो, q ले लो, p ले लो. So ma plus nb should be equals to what? 0. Now सर लेकिन यहाँ पर तो आपने माइनस nb लेकर के रखा है. प्लीज अंडरस्टैंड, माइनस nb का एक्चुअली में मतलब क्या हुआ? माइनस nb का मतलब हुआ इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू इट. दैट्स ऑल. Okay, rest everything is just the same. Anyway, so we are not discussing right now theorems over here because that would be discussed at the end of the entire chapter. जब हम सारे के सारे theorems करेंगे for the part of proving uniqueness and if and that. But anyway, so two vectors are collinear if ma plus nb equals to 0. First condition. Where m and n can be any numbers. It can be 2, 3, 7, 5, minus 5, कुछ भी हो सकता है. Okay. Now, theorem number 2 says, and it is the condition for what? It is the condition of collinearity. नहीं, it is the condition of coplanarity. But पहले आपको मतलब समझना पड़ेगा कि coplanar का मतलब क्या होता है. Let us say, suppose I have got a book or a sheets like this. This is one of the sheet which is y-axis and this is one of the sheet which is x-axis. यदि कोई प्लेन है जो, यदि कोई वेक्टर है जो इस पर रखा हुआ है, so that means ये वाला जो वेक्टर है वो इस पर्टिकुलर प्लेन के अंदर है, करेक्ट? एंड दैट्स द रीजन व्हाई इट इज नोन एज कोप्लेनर. कोप्लेनर का मतलब जो उसी प्लेन के अंदर हो. सो दे आर सेइंग व्हाट इज द कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर. रिमेंबर, ए एंड बी वेक्टर नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर. मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर नहीं है, राइट? यदि A vector और B vector collinear नहीं है, then the necessary condition will be there exists a vector R vector in the space which should be equals to T1A vector plus T2B vector. अब what is T1 and T2? जैसे M और N था ऐसे ही T1 T2 कुछ भी डाल देना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, anything at all. Okay. थ्योरम नंबर 3. ये थ्योरम्स आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आप प्रैक्टिकली इनको सॉल्व नहीं करोगे. So it will keep on creating confusion. But anyway. Theorem number 3, xa plus yb plus zc should be equals to 0. Necessary condition for three vectors to be coplanar. Necessary condition for three vectors to be coplanar. तो पहले क्या था? पहले two vectors to be coplanar के लिए था. Okay. So three vectors to be coplanar should be equals to what? That is xa vector plus yb vector plus zc vector should be equals to what? 0. नेक्स्ट पर आता है. ये कल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था. आई कैप का मतलब होता है एक्स एक्सिस. ओ हमेशा शो करेगा ओरिजिन को. तो सपोज करो यदि मैंने कोई एक डायग्राम बनाया समथिंग लाइक दिस. अब देखो ये जो वेक्टर है ये बोर्ड से बाहर आ रहा है तो आई कांट शो इट लाइक दिस, राइट? तो मुझे ऐसे ही बनाना पड़ेगा. बट ये वेक्टर ऐसे में इट इज कमिंग आउटसाइड द दिस एक्सिस. ओके.
सो दिस टेक्निकली सपोज कर लो आपने मान लो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z कुछ भी मान लो गाइस। सो मैंने इसको x माना, इसको y माना एंड इसको z एक्सिस मान लिया। चॉइस इज योर्स। सो दे आर सेइंग आई कैप का मतलब होगा ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर मतलब यदि वो x की तरफ में जा रहा होगा तो ओ ए। यदि वो 2 डायमेंशन फिगर है, 2 डायमेंशन, तो कॉमन सेंस है उसमें केवल x होगा और y होगा, z तो आता ही नहीं है 2 डायमेंशन में। सो दैट मीन्स उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1, 0। सर ये 1, 0 क्यों आया? देखो इधर पे क्या लिखा है, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, 0। j क्या हो जाएगा 0, 1। क्यों? बिकॉज j का मतलब होता है y एक्सिस, तो y एक्सिस पे होगा तो x 0 होगा, 0, 1। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स को हमेशा 3 डायमेंशन में आप क्या शो करते हो? 3 डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ओके, सो 0, 0, 0। सारे फॉर्मूलाज वही बच्चों वाले फॉर्मूलाज है। याद है क्लास 10th में या 9th में डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि 3 डायमेंशन में आ जाएगा तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर कर देना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। सर लेकिन आपने तो यहाँ पर x1 माइनस x2 लिखा है। गाइस आप 2 माइनस 3 करो या आप 3 माइनस 2 करो और उसका स्क्वायर करोगे, आंसर सेम ही आएगा। सो वेदर इट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, बात एक ही है। आगे बढ़े। ओके, ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। 3 डायमेंशन में क्या हो जाएंगे? ओरिजिन से यदि कैलकुलेट करोगे तो x में मान लो केवल x का ही कोऑर्डिनेट है। सपोज करो कोई एक पॉइंट है जो x पर ही है, इसका मतलब क्या होगा? केवल x का कोऑर्डिनेट आएगा, तो नंबर क्या बन जाएगा? मान लो ये नंबर है 5, तो 5, 0, 0, क्योंकि ये नंबर तो y पर और z पर है ही नहीं। अब मान लो कोई नंबर हुआ जो कि y पर होगा, इन दैट केस वेरी सिंपल, इट विल बी, सपोज कर लो ये नंबर है 5, तो आप क्या लिखोगे 0, 5, 0। नहीं सर z एक्सिस पर है, नो प्रॉब्लम, क्या नंबर लिखोगे 0, 0, 5, क्योंकि x y दोनों नहीं। सिंपल गाइस। नेक्स्ट पर आते हैं। सो दैट इज ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यदि पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पर है तो डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम xy प्लेन, कोई एक पॉइंट है p और मान लो ये बोर्ड ही है, दिस इज x एंड दिस इज y। अब इन्होंने बोला है डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम xy प्लेन, और अब जो z है मेरा वो कहाँ है? यहां पर। अब इन्होंने बोला है कोई पॉइंट है p, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम xy प्लेन। यदि वो पॉइंट यहां पर है, कहीं हवा में यहां पर है, तो इसका डिस्टेंस xy प्लेन से कितना हो जाएगा? अरे कॉमन सेंस, केवल z ही तो होगा, क्योंकि x पे और y पे तो लाई ही नहीं करता। डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम yz प्लेन, मान लो ये एक्सेस y है और ये एक्सेस z है, कॉमन सेंस है, यदि वो पॉइंट यहां पर होगा तो इसका मतलब x ही तो मेजर करोगे, yz पे तो लाई ही नहीं करता। इट्स दैट सिंपल। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस ऑफ फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। द लास्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 4, इफ a b and c all are 3 coplanar vectors then technically, और आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, a b and c टेक्निकली आर नॉट कोप्लेनर, तीनों एक साथ नहीं है, तीनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है a b c में, देन स्पेस के अंदर एक ऐसा वेक्टर होगा which can be written as the linear combination of these vectors. Now I know ये थोड़ा सा बाउंसर जाएगा, just listen to it, that's all. अभी जब आएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हमेशा ध्यान रखना। सपोज करो किसी ने आपको एक कोऑर्डिनेट दे दिया 2i माइनस 3k और मान लो ये एक कोऑर्डिनेट है a, तो आप इसका मॉड कैसे निकालोगे? मॉड शुड बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, हमेशा आएगा जो भी i का कोएफिशिएंट है 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ध्यान रखना स्क्वायर में हर चीज पॉजिटिव हो जाती है, तो आंसर आएगा 4 प्लस 9 विल बी √13, दैट्स ऑल। गॉट इट? ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एक अब आते हैं डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस पे, एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑफ कोर्स टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, दे ऑल वर द अनसॉल्व्ड वंस, दो आई फेल्ट लाइक चूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व्ड वंस, बट मुझे लगा कि फिर मैं होमवर्क क्या दूंगा आपको, तो आई थॉट ऑफ गिविंग सम क्वेश्चंस ऑफ सॉल्व्ड एंड सम क्वेश्चंस ऑफ अनसॉल्व्ड।
Now guys, a sincere request, please just do solve the homework at least, not at last. Let's start with the question number 1, 5.1. There is a vector, I have not written the entire language, shortcut likha hai. There is a vector A and it is traveling where? Due north. So there is this vector A which is traveling due north. Then there is another vector B which is traveling due west. Now they are saying there is another vector which is traveling where? That is B is to what? To the west. So let's say suppose this particular part is what? The western direction. Right. Now this is the direction of what? Resultant यही बनेगा आपके पास में. कॉमन सेंस है. इन्होंने बोला यदि A आपका ड्यू नॉर्थ है और B आपका ड्यू वेस्ट है और इन्होंने आपको गिवन ऑलरेडी दे करके रखा हुआ है. कितना दिया हुआ है? दैट इज मॉड ऑफ A should be equals to 24. इन्होंने A वेक्टर नहीं दिया. A vector was which one? This one. And B vector was which one? That is this one. Correct. दो इसके डायरेक्शंस को ऐसे बना देता हूं तो समझ में आ जाएगा. लेट्स से सपोज A वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन को नॉर्थ मान लिया और इस डायरेक्शन को वेस्ट मान लिया. बात एक ही है. सो दिस इज योर डायरेक्शन B वेक्टर. तो लेट्स मार्क इट एज A, B and C. Got it. Now they are saying mod of A is 24, then comes mod of B कितना है? 7. अब ये लोग बोल रहे हैं फाइंड करो mod A प्लस mod B. सो कॉमन सेंस है, आपको मालूम है कि यदि A वेक्टर ऐसे में जा रहा है देन ये वेक्टर ऐसे में जा रहा है, देन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर. क्यों? आपको ऑफ कोर्स रीजन में लिखना पड़ेगा that A vector plus B vector should be equals to what? That is AC vector. Right? Why? Because A vector plus B vector and this is known as क्या? Resultant vector. क्यों? Because of triangle law of vector addition. राइट. प्रॉब्लम इज इन्होंने आपको मॉड ए का मैग्नीट्यूड देकर के रखा है विच इज 24, मॉड बी का मैग्नीट्यूड देकर के रखा हुआ है 7. राइट. आपको सबको भूल जाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो एच स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यही होता है. नाउ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर, दैट मीन्स ए प्लस बी का मॉड का स्क्वायर should be equals to what is P? This side, that is, suppose कर लो मैंने यहाँ लिख दिया A square plus what is this side is B square. अब आगे पीछे लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला. A plus B तो हमें निकालना था तो इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं. What is mod of A? Mod of A था 24, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? That is, पर लिख देता हूँ 24 square. What is mod B? Mod B is 7 square. Mod of A plus B whole square should be equals to कितना हो जाएगा? 576 plus 49. और mod of A plus B the whole square should be equals to what? 625. और mod of A plus B should be equals to what? 25. Square rooting both the sides. तो square root करूंगा तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा? 25. So that means what is mod of A plus B? 25. तो ये कितना है? 24. ये कितना है? 7. और वो वाला कितना आ रहा है? Got it? So this is the part. So remember guys, वेक्टर के क्वेश्चंस में नॉर्मली डायग्राम्स बनाना पड़ता है. नॉर्मली आपके वाले बुक में दिया होता है, बट यदि नहीं दिया हो तो ध्यान रखना. Okay, let's move on to the next question, which is question number 2. Now guys, question number 2 is very very important. ध्यान रखना, मॉड ऑफ A प्लस B का मतलब अंडर रूट ऑफ पूरा स्क्वायर होता है. ओके, खैर क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है. PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू 2A वेक्टर और 2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर एंड QR इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ B वेक्टर. द मिड पॉइंट ऑफ PR इज M. फाइंड इन टर्म्स ऑफ A एंड B ऑन द अदर साइड्स. सो लेट्स, इन्होंने बोला ये तीनों को A और B के वेक्टर के टर्म्स में करना है. पहले तो फिगर समझते हैं. देयर इज अ ट्रायंगल PQR.
सो लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल। जहां बनाना है वहां बना दो। सो अपन नॉर्मली हमेशा ज्योमेट्री में ऐसे ही बनाते हो, पी क्यू आर बना दिया, पी क्यू आर। दे आर सेइंग पी क्यू इज इक्वल्स टू 2a कैप, पी क्यू शुड बी इक्वल्स टू 2a कैप, दैट इज दिस वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? सर आपको कैसे मालूम पड़ा कि डायरेक्शन यहाँ है? बिकॉज पी से क्यू जा रहा है तो डायरेक्शन यही होगा। क्यू आर वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू 2b, क्यू आर शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? 2b। नाउ दे आर सेइंग midpoint of PR is M, midpoint of PR is M. Find in terms of A and B। आपको सारे आंसर्स A और B के टर्म्स में चाहिए, तो पहले हमें फाइंड करना है PR, तो पहले PR पे आ जाते हैं। So PR vector should be equals to, so what is PR? But PR के पहले मान लो ये वेक्टर यहाँ है, ये वाला वेक्टर QR यहाँ पर जा रहा है और ये 2b है, तो इसका मतलब है PR वेक्टर should be equals to what? That is PQ vector plus QR vector. Why? Because triangle law of vector addition. Guys, pardon my writing, please. Triangle law of vector addition. तो PR वेक्टर ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो PQ प्लस QR हो गया। अब क्या करूंगा? PQ की जगह पर क्या रखूंगा? सर लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट करना क्यों कंपलसरी है? बिकॉज उन्होंने क्लियरली दिया है कि A और B के टर्म्स में चाहिए। सो ये आ गया 2A प्लस व्हाट इज QR? QR इज 2B। सो व्हाट इज PR वेक्टर देन? इट शुड बी इक्वल्स टू 2A प्लस 2B। आंसर आ गया, काम खत्म, पैसा आ जाओ। आप इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ब्रैकेट A प्लस B वेक्टर, ये भी हो गया आपका आंसर। सेकंड पर आते हैं, PM वेक्टर। नाउ व्हाट इज PM वेक्टर? P से M वेक्टर। PM उन्होंने वेक्टर आपको फाइंड करने को बोला है, मतलब P से M। नाउ प्रॉब्लम इज अभी आपके पास में ये वाला पार्ट आया था दैट M इज द मिड पॉइंट। यदि M is the midpoint, that means PM should be equals to half of PR vector। पहले देखो कैसे आया। P आपने बोला since M is the midpoint, तो मैं यहां पर रीजन लिख देता हूं, because M is what? M is the midpoint। अब यदि M आपका midpoint है, that means जो भी PR है उसका आधा ही तो PM होगा, तो PM should be equals to what? Half of PR। If PM should be equals to half of PR, so let's put PM over here. It should be equals to half. What is PR? PR is 2 times of, अभी आपने बोला था A vector plus B vector. So 2 से ये वाला part 2 cancel. So PM should be equals to A vector plus B vector. ये भी हो गया। Got it? और आगे बढ़ते हैं। Let's move on to the question number 3. What is QM vector? Guys, I am not going to solve the entire questions, of course, because एक exercise में more than around 15 and 20 and 25 and 40 questions हैं। So since हमें अपना syllabus और आगे बढ़ाना है, that's the reason why I'll keep on telling you what to do with the part of homework. So do listen it very carefully. Moving on to the question number 3rd part. What is the 3rd part? QM वेक्टर निकालना है आपकी बार आपको, QM वेक्टर। बट सर QM वेक्टर के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है, और पहली बात तो हमने लाइन भी नहीं ड्रॉ किया है QM का। सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम QM, ये निकालना है। अब ये कैसे निकाल सकते हो? PQ वेक्टर प्लस QM वेक्टर शुड बी इक्वल टू PM वेक्टर, हो सकता है? तो लिखते हैं, वी नो दैट what? That is PQ vector plus QM vector should be equals to PM vector। याद है ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन, this plus this should be equals to this, करेक्ट? तो इसका मतलब है मुझे तो QM निकालना है, so that means QM vector should be equals to PM vector minus PQ vector, करेक्ट? नाउ हाउ विल यू डू? QM वेक्टर तो है आपके पास में ये वाला पार्ट, तो QM वेक्टर शुड बी इक्वल्स टू PM कितना है आपके पास में? PM की वैल्यू आई थी A प्लस B, सो लेट्स पुट A प्लस B।
माइनस व्हाट इज पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर कितना था आपके पास में 2a, तो माइनस 2a वेक्टर। सो कितना हो जाएगा a प्लस बी वेक्टर माइनस 2a, तो a माइनस 2a कितना हो जाएगा, विच इज गोइंग टू बी माइनस a। तो आंसर कितना आएगा b वेक्टर minus a vector. That's all. Did you understand? Okay. So since now almost around 20-25 minutes would be over. So what I am going to do right now is I am going to leave this particular part over here. Tomorrow once again we are going to continue with this exercise and we are going to solve all the questions. By the time आपको क्या करना है, by the time start solving the solved question, unsolved मत करना, केवल solved question और exercise number 5.1 करना. Okay. See you from my side guys, enjoy and remember guys, we are going to cover up the part because अब से मतलब मैं आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी लेक्चर लेना स्टार्ट करूंगा डेडिकेटेडली ऑफ स्टेट, बट प्लीज रिमेंबर फॉर दैट यू नीड टू कोऑपरेट विद द पार्ट ऑफ होमवर्क. सो आई एम ओनली आस्किंग यू टुडे, प्लीज डू द एक्सरसाइज नंबर 5.1 के पहले के एग्जाम्पल्स और कुछ मत करना, किसी कोई चीज को हाथ मत लगाना. दैट्स ऑल. Okay, see you guys, cheers, bye.